Good morning to everyone. So today we will do this sum. You can see in your screen. Ascertain missing information from the following. So we'll have to calculate what is missing in this question. So they have given bills payable 31/3/2017 means 31st March 2017. We have the balance of 4,000 in bills payable means on 1st April. Next day, 1st April 2017, we have to pay rupees 4,000 to our creditors. ये bills payable कौन क्या होता है? It's a document which is signed by us towards our creditors. So हमें हमारे creditors को 4,000 pay करना है. We have to pay to our creditors rupees 4,000 on 1st April 2017. Now one more balance is given, that is 31st March 2018. How much is the balance? 800, na? 800. So this is the closing balance. देखो year change है. Starting में 2017 आएगा, उसके बाद 2018. Means this given is the closing balance. At the end of the year, we have to pay 800 to our bills towards our bills payable. Creditors are converted into bills payable so that they get a surety कि कौन से डेट में पैसा पे होगा. क्योंकि bills payable becomes a legal document, then the obligation to pay becomes higher, right? क्रेडिटर्स को हमने ओरली बोल दिया ये डेट में पे करेंगे, बट ओरली बोला है, कुछ लिख के साइन करके नहीं दिया, तो इतना ज्यादा ऑब्लिगेशन नहीं होता. But when we sign and give, then it creates more compulsion. Then there is a creation of a legal document. So 800 we have to pay on year end. And then bills payable, discharge means settled, paid. कितना पे किया? 37,200. जब हमारे बिगिनिंग ईयर में सिर्फ 4,000 पे करना था टुवर्ड्स बिल्स पेएबल और एंड में 800 बाकी है, सो पूरे ईयर में हमने 37,200 कैसे पे कर दिया? अगर हमें बिगिनिंग में सिर्फ 4,000 ही पे करना था, सो हमने 37,200 कैसे पे कर दिया? Means what happens that there is some bills payable which is created during the year. How is bills payable created? When creditors are converted into bills payable. तो यहाँ पे कुछ तो creditors convert हुआ होगा bills payable में in the year, वो missing है. That is the missing information which we have to ascertain. Ascertain means we will have to calculate. So let us prepare our bills payable account. Bills payable is a asset or a liability? Bills payable is a liability. Correct answer. So bills payable liability. Let us create a table. Ledger बना लेते हैं. So particulars rupees, and then particulars rupees. So let us start. Bills payable, as you all said, is a liability. Liability has a credit balance. So on the credit side, we will write, credit side starts with by. So by balance brought down. By balance brought down. The balance what is there is
4,000. Then we have also the closing balance. As I told you, closing balance is always shown in the opposite side. So credit balance है creditors because sorry bills payable भी तो liability है. Liability means credit balance. तो क्लोजिंग बैलेंस जो है क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट साइड में रहेगा. टू बैलेंस कैरी इट डाउन. इट्स 800. Now one more thing is given, that is bills payable discharge. Discharge means paid. पे करेंगे तो क्या बाहर जाएगा? पे करेंगे तो मनी विल गो आउट. एंड पे करेंगे तो बिल्स पेबल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. लाइबिलिटी विल रिड्यूस. लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कम होगा तो डेबिट में लिखेंगे. सो यहाँ पे वी विल राइट टू कैश बैंक. क्या करने वाले हम लोग? पे करने वाले. पेड बोलो, डिस्चार्ज बोलो, सेटल्ड बोलो. 37,200. Now only this much information is given. Close करेंगे तो we can see which side is heavy. Close करेंगे, debit is heavy. How much it is coming? 38,000. So same amount will come here. 38,000. So balance क्या हो जाता है? 38 minus 4 will be equal to 34,000. But bills payable increase कैसे हुआ होगा? Bills payable increase हुआ होगा when we have converted our creditors into bills payable. Bills payable कैसे create होता है? मतलब increase हुआ है in the year bills payable और create हुआ होगा. But bills payable create कैसे होता है? जब creditors convert होता है bills payable में. So यहाँ पे लिख सकते हैं by creditors. By creditors. This is the balancing figure. And with this sum is done. हमें पूछा गया था calculate the missing information. We have calculated that missing information. So now let us do the next sum. What has to be calculated from the following information? From the following information, calculate amount of bill receivable received from debtors. हमें फाइंड करना है कि डेटर्स में से amount of bill receivables received from the debtors, and we have to calculate credit sales, and we have to calculate amount of total sales. Credit sales हमें debtor account से मिल जाएगा. Bills receivable से हमें मिल जाएगा कि debtor से कितना bill receivable मिला है. So we'll have to here calculate bill receivable account. Credit sale के लिए we will have to calculate debtor account, and total sales के लिए credit sale and cash sales दोनों add करें तो we will get total sales. Okay. So now what we will do? Let us start this question. What information is given? Let us go to the information given. So debtors on 1/4/2017. 1/4/2017 को year start हुआ. 1/4/2017 को year start हुआ. तब डेटर का बैलेंस है 65,000. मतलब डेटर से हमें 65,000 पैसा मिलना है on 1/4/2017. That is 1st of April 2017. And डेटर से 31st March 2018 को हमें कितना पैसा पे करना, मिलना है 50,000. मीन्स ओपनिंग में 65,000 मिलना है, क्लोजिंग में 50,000 मिलना है.
Who are our debtors? Debtors are our customers to whom we have sold goods on credit. तो पहले बिगनिंग ऑफ द ईयर 65,000 मिलना चाहिए, एंड ऑफ द ईयर में 50,000 मिलना चाहिए. फिर हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल रिसीवेबल on 1/4/2017 that is 23,000 बिल्स रिसीवेबल से पैसा मिलना है. कभी 1/4/2017 मीन्स 1 अप्रैल 2017. 1 अप्रैल को अगर साल शुरू हुआ तो एंड कभी होगा 31 मार्च 2018. दोनों बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल गिवन. ओपनिंग 23,000, क्लोजिंग बैलेंस इज 29,000. सो हम क्या कर लेते हैं, पहले तो बिल्स डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ओपन करते हैं, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस एज closing balance both are given, of debtors also and bills receivable also. So what we will do, let us open the debtor account and bills receivable account. So in this sum we have to prepare two different accounts, debtor account and bill receivable account. Both are different things. Debtor our customers whom we have sold on credit, and bill receivable are the debtors who have signed a document of bills of exchange. So we know when is the due date, when the money will be receivable from the ones who have signed the bills of exchange document. So अब जब हम इससे बड़ा, ये तो छोटा छोटा सम्स है, जब हम फुल फ्लेज फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे, सो डेटर अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, एवरीथिंग विल बी देयर. सो दिस इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस नाइसली, वो भी आराम से हो जाएगा. सो बहुत कुछ नहीं रहेगा हर एक अकाउंट में. लिटिल में जैसे हमने अभी बिल्स पेबल का अकाउंट किया, वैसे स्मॉल स्मॉल things will be there. We will start the account. So debtor account and bills receivable account. दो अकाउंट का इंफॉर्मेशन दिया है, debtor and bill receivable already prepared. So debtor क्या है, असेट है या लाइबिलिटी है? असेट है. ऑल ऑफ यू नो इवन बिल्स रिसीवेबल इज अ असेट. असेट मतलब इट विल हैव अ डेबिट बैलेंस. सो डेबिट साइड में वी विल राइट टू बैलेंस brought down. टू बैलेंस brought down. How much it is? टू बैलेंस brought down 65,000 and closing balance is 50,000. Let us remember this and write down. So opening balance है 65,000 and as you all know, closing balance is always shown on the opposite side. So opposite side में लिखेंगे by balance carried down. Opposite side, credit side में we will write by balance carried down. So ये हो गया. Now bills receivable का इंफॉर्मेशन चेक करते हैं. So what we have, bills receivable में opening balance is 23,000 and closing balance is 29,000. Opening balance of bill receivable 23,000. Closing balance of bill receivable 29,000. So opening balance, again this is also an asset. Two balance brought down. How much it was? 23,000. Na? I'll again verify. And closing balance will be in the opposite side. So by balance carried down 29,000. We will once again check, cross verify whether the amount is correct. So here
ओपनिंग बैलेंस डेटर का, क्लोजिंग बैलेंस डेटर का, ओपनिंग बैलेंस बिल रिसीवेबल का, क्लोजिंग बैलेंस बिल रिसीवेबल का हमने नोट डाउन किया. नाउ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स. टेल मी, डेटर्स पैसा चुका देंगे तो बैलेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा. डेटर्स हमारे कस्टमर ने पैसा दे दिया तो उधार उनका कम होगा. डेटर असेट कम, डेबिट बैलेंस कम होगा. क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेटर इज अ डेबिट बैलेंस बिकॉज असेट है, पर पैसा मिल जाएगा तो कम हो जाएगा. तो डेबिट का ऑपोजिट हमारे अकाउंट्स में होता है क्रेडिट. सो क्रेडिट में लिखेंगे बाई कैश बैंक 3,02,000, बाई कैश बैंक, बाई कैश बैंक. ये ब्रैकेट में लिख सकते हो. दिस इज कलेक्शन कैश बैंक. दिस इज व्हाट? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. तो कितना है अमाउंट? 3,02,000. So I will write here 3,02,000, 3,02,000. So collection मिल गया 3,02,000. कलेक्शन के बाद we receive the money from the debtors. Next, discount allowed. क्या हुआ है? डिस्काउंट अलाउड हुआ है. तो डेटर्स को जब डिस्काउंट अलाउ किया तो सपोज 100 रुपीज मिल रहा है, हमने 5 रुपीज का डिस्काउंट दिया. सो डेटर बैलेंस कम हो जाएगा. डेटर डेबिट बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट में लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड 8,000. सो यहाँ पे सेम डेटर अकाउंट में बाई डिस्काउंट 8,000. By discount, we will write 8,000. This is also done. Now let us move ahead. What is given after discount allowed? Cash received from bill receivable. BR मतलब bill receivable. Cash received from bill receivable. Bill receivable से पैसा मिलेगा तो ड्यू डेट में पैसा मिलेगा. तो क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल ज्यादा होगा क्या कम होगा? जब पैसा मिलता है कम होगा. बिल रिसीवेबल इज असेट. असेट मींस डेबिट बैलेंस. कम होगा तो क्रेडिट करेंगे. अगेन कितना अमाउंट है? लेट अस सी. 21,000 है. तो वी विल राइट हियर बाय क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है. बाय कैश बैंक अकाउंट क्या मिल रहा है? बिल रिसीवेबल से पैसा मिल रहा. आप कलेक्शन भी लिख सकते हो या हॉनर्ड भी मिल सकते हो. कितना अमाउंट है? 21,000. This is done. Now let us read what next. What is given? So next में दिया है बैड डेट्स. बैड डेट्स होगा नहीं, बैड डेट्स होगा डेटर कम हो जाएगा. I had explained when I was doing debtor account, bad debts recovered will not come because bad debts वापस मिला तो उसमें डेटर का कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है. बट बैड डेट्स होगा तो डेटर मिल, हम लोग देखो डेटर में से बैड डेट्स माइनस करते हैं, नहीं मिलने वाले तो बैड डेट्स हुआ तो माइनस करना पड़ेगा. डेटर कम हो जाएगा. कम मतलब क्रेडिट में लिखेंगे 14,000. बाय बैड डेट्स, by bad debts. How much? 14,000. Let us write here by bad debts 14,000. इसके बाद what we have? Cash sales 2,25,000. But कैश में सेल किया तो वो डेटर्स नहीं है. हम जिनको क्रेडिट में सेल करते हैं वो डेटर्स है. तो ये कैश सेल्स तो हमें टोटल सेल्स चाहिए. तो ये कैश सेल्स इंपॉर्टेंट है बट डेटर अकाउंट में भी नहीं आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में भी नहीं आएगा. अगर क्रेडिट सेल्स होता तो ये आ जाता. करेक्ट. इसके बाद बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड. बिल्स रिसीवेबल आर क्रिएटेड for a particular period of time.
वो टाइम पे दो चीज हो सकते हैं, या तो कैश मिलेगा बिल्स रिसीवेबल से, उसको हॉनरिंग बोलेंगे, या तो कैश पैसा नहीं मिलेगा, उसको बोलेंगे डिसऑनरिंग। तो डिसऑनरिंग में भी बिल्स रिसीवेबल कम होता है, तो कितना है 20,000। बिल्स रिसीवेबल असेट है, असेट हैज विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस, बट कम होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। बाई कम क्या हो रहा है, डेटर्स है ना, बिल्स रिसीवेबल कम होगा तो डेटर्स हो जाएगा फिर से, मतलब क्या पैसा भूल जाएंगे नहीं देंगे तो, नहीं ना। डिसऑनर्ड कितना है 20,000। टेल मी, हम डेटर अकाउंट भी बना रहे, यस, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो हम क्या वो पैसा भूल जाएंगे, रहने तो नहीं चाहिए। आर वी हियर टू गिव लाइक सैक्रिफाइस आवर मनी, और वी आर हियर टू डू बिजनेस। बिजनेस में एक एक पैसा हिसाब रहता है ना, वी कैन लिव एनी मनी। सो ये पैसा को भूल जाएंगे नहीं, ये जो नहीं मिल रहा है फिर से डेटर हो जाएगा। सो बाई डेटर, हम डेटर अकाउंट बना रहे, बाई का ऑपोजिट डेटर इंक्रीज होगा, बिल रिसीवेबल कम हो गया पर डेटर ज्यादा हो जाएगा, तो बाई का ऑपोजिट 2, यहाँ पे 2 में लिखेंगे। डेटर असेट है, ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल रिसीवेबल, व्हाट इज इट, डिसऑनर्ड, हाउ मच इट इज 20,000। इसके बाद लास्ट वन, सेल्स रिटर्न। सेल्स जब रिटर्न करेगा डेटर तो क्या उसका पैसा पे करेगा, एज अ डेटर यू रिटर्न द गुड्स यू डोंट वांट, इट इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड, सो यू रिटर्न इट, डैमेज या कुछ भी होगा यू रिटर्न इट, विल यू मेक द पेमेंट फॉर रिटर्न। सो डेटर कम हो जाएगा, पैसा कम मिलेगा, सो डेटर असेट डेबिट बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट में 17,000, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई सेल्स रिटर्न, बाई सेल्स रिटर्न हाउ मच, $17,000. Now just make the is how much it is coming, 1 minute, it is coming to how much, one more thing, हम लोग ने यहाँ पे सबसे पहले हम डेटर्स बंद नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बिल रिसीवेबल बंद करेंगे। सो टेल मी, क्योंकि डेटर में अभी भी डेटर कितना बिल्स में कन्वर्ट हुआ हमने लिखा नहीं है, वो तो तब पता चलेगा जब बिल रिसीवेबल बंद करेंगे। सो पहले हमेशा डेटर से पहले क्या बंद करना है, बिल रिसीवेबल, ताकि हमें पता चले बिल अब देखो डेटर ओपनिंग में से 23,000 था, लेकिन हमने 21,000 मिला, 20,000 नहीं मिला, विच इज अ बिगर अमाउंट देन 23,000. So first close the, how much you are getting, you are getting 70,000 in the credit side heavy, 70 is heavy, minus 23,000 karo, how much you are getting, we are getting 47,000. So इसको बोलेंगे डेटर कैसे इंक्रीज होता है, आई मीन बिल रिसीवेबल कैसे इंक्रीज होता है, जब बिल्स ड्रॉ होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारे डेटर्स है जो कन्वर्ट हो गए हैं बिल्स रिसीवेबल में। सो दिस 2 डेटर्स विल कम हियर बाय बिल रिसीवेबल, डेटर बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट हुआ तो क्या हो जाता है, डेटर कम हो जाता है। व्हेन द डेटर इज कन्वर्टिंग इनटू बिल रिसीवेबल, व्हाट हैपेंस, डेटर जब बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट होता है तो डेटर कम होता है, बिल रिसीवेबल ज्यादा होता है, कम होता है असेट तो क्रेडिट में लिखा, और असेट ज्यादा होता है तो डेबिट में, तो बिल रिसीवेबल ज्यादा हुआ तो डेबिट में, बट डेटर कम हुआ तो क्रेडिट में। नाउ क्लोज दिस अकाउंट, 3,02,000, 8,000, 14,000, 47,000, 50,000, हाउ मच यू आर गेटिंग, कितना मिल रहा है
4,38,000 आ रहे. How much you're getting? See whether you're getting this amount. 4,38,000. You're getting this amount. 4,38,000. So now ये इंक्रीज कैसे होता है डेटर जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं. देखो 65,000 में इतना बिगनिंग में डेटर कितना मिलना था 65,000. एंड में अभी भी 50,000 मिलना है, लेकिन हमें पूरा साल में 3,02,000 का कलेक्शन भी हुआ है. तो ऐसे कैसे हो सकता है सिर्फ 65,000 में और 20,000 बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड में. मतलब पूरे साल में हमने क्रेडिट में भी सेल किया होगा. तो our balancing figure will be 2 credit sales. Our balancing figure will be 2 credit sales. 2 credit sales is our balancing figure. So how much it is? 3,53,000. Getting this amount? That was the debit credit side का total. ये minus किया 65,000 and 20,000. We got 3,53,000. लेकिन हमसे क्या क्या पूछा है? हमसे क्रेडिट सेल पूछा है. हमने फाइंड आउट किया बिल रिसीवेबल कितना, डेटर से डेटर कितना बिल ड्रॉ हुआ वो भी पूछा है. हमने किया बिल रिसीवेबल अकाउंट ओपन करके. क्रेडिट सेल भी मिल गया डेटर अकाउंट ओपन करके. अभी टोटल सेल्स चाहिए. सो लेट अस प्रिपेयर द टोटल सेल. कैश सेल्स कितना है 2,25,000. सो लेट अस प्रिपेयर द टोटल सेल्स. लेट अस शो हियर टोटल सेल्स. टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल्स. क्रेडिट सेल्स अभी हमने फाइंड आउट किया. हाउ मच इट इज 3,53,000 प्लस हाउ मच इज कैश सेल्स 2,25,000. दोनों को ऐड किया we get 5,78,000. 5,78,000. With this we get the credit sales also. So with this we have done all what was asked. With this today's lecture end karte. Thank you very much everyone.